Good morning to you all. Students, today I am going to start your new chapter, complex numbers and quadratic equations. This is chapter 5th of your syllabus. Okay. Students, in the previous class, you had an idea about real numbers. Okay. That is the set of numbers, the set of rational numbers and irrational numbers be called real number. Okay. But here students, what is कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आपको इमेजिनरी नंबर जानना पड़ेगा. आइए डिस्कस करते हैं. लेट्स कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus 1 is equal to 0. And suppose students we have to solve this equation. इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है. तो आप कर सकते हैं 1 can be written as 1 square. Okay. Students, we know that an identity a square minus b square, then it will be equal to, in bracket, a plus b and another bracket into a minus b, then it will be equal to x minus 1 into x plus 1 is equal to 0, and this implies that either x minus 1 will be equal to 0 or x plus 1 will be equal to 0. This implies that x will be equal to 1 or x will be equal to minus 1. Okay. Or simply we can say here x square will be equal to 1, and this implies that x will be equal to under root 1 and it will be equal to plus minus. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? x की वैल्यू अगर हम 1 पुट किए तो यह इस इक्वेशन को क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा. x की वैल्यू अगर -1 पुट किए तो इस केस में भी यह इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा. मीन्स स्क्वायर ऑफ -1 1 and 1 minus 1 will be equal to 0, that is RHS will be equal to RHS. Then in this case we can say x is equal to 1 and x is equal to -1 be the solutions of the given quadratic equation x square minus 1 is equal to 0. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो x is equal to 1 है, x is equal to -1 है, वह इस दिए गए इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है. ओके. तो धीरे धीरे मैथमेटिशियन आइलर थे, उनके मन में एक आइडिया आया. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो इसकी सॉल्यूशंस क्या होंगे? दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1. क्लास 10th स्टैंडर्ड तक आपको बताया गया था कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी. बट हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. कोई रियल नंबर आप बताइए जिसका स्क्वायर -1 है? कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो क्या मिल जाए? -1 मिल जाए. ओके. तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे? और आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशंस होंगे. कौन कौन? तो मैथमेटिशियन आइलर ने इसको इमेजिन किया कि जो ये x होगा वह अंडर -1 के इक्वल होगा, और इसको उन्होंने एक ग्रीक वर्ड आयोटा के फर्स्ट लेटर आई से डिनोट किया. आई मीन्स इमेजिनरी नंबर. ओके. तो स्टूडेंट्स, what is imaginary number? Square root of a negative number is imaginary number. Okay. करें कि नेगेटिव नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर का आ जाएगा. ओके. अब स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करें तो क्या होगा? आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू but square of under root -1, then it will be equal to what? -1. अगर I क्यूब की वैल्यू बता दें, I क्यूब
can be written as I square into I square means -1 into I and it will be equal to minus I. ऐसे I to the power 4 I square into I square. We know that I square means -1 and also I square means -1. Then it will be equal to -1 into -1 plus 1 means I to the power 4 means 1. Okay. ऐसे I to the power 5 I to the power 10 आपसे किसी ने कह दिया तो जब 4 से अधिक पावर होगा तो क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर लेंगे किससे, 4 से. तो 10 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 या 8 रिमाइंडर 2. तो I to the power 10 can be written as I to the power 4 to the power 2. 4 से डिवाइड किए, कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स में. तो I to the power 4 to the power 2. Okay, it means 4 2 या 8 into I square. तो स्टूडेंट्स इसको आप पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो I to the power क्या हो जाएगा, 4 2 या 8 into I square. Here base be same, then power can be added. Then 8 plus 2 will be equal to 10. That is I will be I to the power 10. And what is value of I to the power 4? क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइड करते हैं कि I to the power 4 की वैल्यू हमारे पास आसानी से अवेलेबल है. तो क्या है, 1, और 1 का चाहे कुछ भी पावर कर लें उसकी वैल्यू क्या आएगा, 1. यहाँ I square की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1. Then it will be equal to 1 into -1 and then it will be equal to -1. तो ऐसे ही अगर I to the power 4 से ज़्यादा पावर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और I to the power 4 राइट करके जितना क्वोशेंट आया होगा वो बना देंगे और रिमाइंडर जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा होगा I to the power उतना रिमाइंडर कर लेंगे. ओके, तो ऐसे आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं. ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर ऐसे राइट कर दिया जाए I to the power -1 की वैल्यू क्या होगा, तो I to the power -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon I. स्टूडेंट जैसे रूट में हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर में जब हम लोग स्क्वायर रूट देख लेते थे तो रेशनलाइज किया करते थे. ठीक उसी प्रकार इमेजिनरी नंबर के केस में भी अगर डिनोमिनेटर में I दिख गया तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं. उसी क्वांटिटी से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लीजिए. Then 1 upon I can be written as 1 upon I into I. जब डिनोमिनेटर में रूट होता था सपोज करिए रूट 2 है तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे. ठीक उसी प्रकार यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में I से मल्टीप्लाई करा लेंगे. I upon I into I square. I square की वैल्यू क्या होगा, -1. ये आपका क्या हो जाएगा, -I. तो I to the power -1 means -I. ऐसे ही I to the power -2 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 upon I square and we know I square means -1, then it will be equal to -1. I to the power -3, then it will be equal to what, denominator में power positive, and 1 upon I cube can be written as I square into I, and it will be equal to 1 upon I square means -1 into I, it will be equal to -1 upon I, and this can be written as, यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर में आ गया तो आप इसको जैसे रेशनलाइज करते थे वैसे ही एडजस्ट कर लीजिए. इट विल बी इक्वल टू -I स्क्वायर. I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 -I upon -1. here y and minus will be cancelled out and then it will be equal to I. और ऐसे ही अगर पावर अधिक दे रखा है
सपोज करिए आई टू दी पावर -10 दे रखा है, तो इसको राइट कर लेंगे 1/i to the power 10 and 1/i to the power 10 can be written as I to the power 4 into 2 into I square. And here we know that the value of I to the power 4 is 1, then we can write here 1 is square and I square means -1. Then it will be equal to 1/1 into -1 will be equal to -1. तो ऐसे ही आप इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो एक तो रहा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कोई भी किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हम पता करेंगे, तो जो आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ओके, क्लियर? बट स्टूडेंट्स, the name of the chapter is complex numbers. What is complex numbers? Complex number क्या होता है? A number which is in the form of a plus ib. A number which is in the form of a plus ib is called complex numbers and it is denoted by z. तो स्टूडेंट्स ये जो z है मीन्स a प्लस आई बी है, वो कैसा नंबर है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अब यहाँ पे a क्या है, रियल नंबर, b क्या है, रियल नंबर। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी ने कहा कि 3 + 4i एक ऐसा नंबर है, तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 3, 4 दोनों रियल है और आई भी है। इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3 + i × 4। ओके, so we can say a number which is in the form of a plus I will be called complex number. It is denoted by z. अब conjugate of a complex, what is conjugate of a complex number? Conjugate of a complex number, it is denoted, suppose if a complex number is z is equal to a plus ib, then conjugate of this complex number will be denoted by z bar and it will be equal to a minus ib। जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो वह उस नंबर का क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ओके, क्लियर? हाँ स्टूडेंट, सपोज z is equal to a plus ib be a complex number. Okay, then it has two parts. First one is real part and second imaginary part. Real part of this complex number is denoted by real part of z, and what is real part of z is equal to, and next what is imaginary part of z? Imaginary part of z is denoted by this and it will be equal to b. इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, i के साथ कौन है, b है, इसका इमेजिनरी पार्ट। ऐसे में अगर पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z will be equal to a and imaginary part of conjugate of z will be equal to minus b. ओके, क्लियर? और स्टूडेंट्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है तो इसका इनवर्स क्या, तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ऐड कर दें जिससे इसकी वैल्यू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। 0 एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों? बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 + i × 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि 0 मिल जाए, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ
जेड। ओके, आप इसमें अगर इसका आपको एडीटी इनवर्स पता करना है तो इसके पहले आप माइनस राइट कर लेंगे। ओके, तो ये आपका एडीटी इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाएगा। सपोज करिए कि x से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x किसके इक्वल हो जाएगा, z को ट्रांसफर करिए 1/z। मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगा। ओके, तो 1/z को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z। a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आई बी, 1/a प्लस आई बी। Let's see the equality of complex numbers. Let us consider z1 is equal to a1 plus ib1 be a complex number, and z2 is equal to a2 plus ib2 is another complex number. Okay, then these two complex numbers are said to be equal. That is, z1 is said to be equal to z2 if and only if the real part of first complex number is equal to real part of second complex number, and the imaginary part of the first complex number is equal to the imaginary part of the second complex number। दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 दे रखा है और z1 इज इक्वल टू z2, कहने का मतलब यह है z1 इज इक्वल टू z2 होगा कब, जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। देन दिस केस वी कैन से दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ओके, कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि अगर 4 प्लस 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i y के इक्वल है तो x और y की वैल्यू बता दीजिए। देन वी कैन से फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर x विल बी इक्वल टू 4 एंड y विल बी इक्वल टू 3। ओके, आप ऐसे पता कर लेंगे। See exercise 5.1 students. Here in exercise 5.1 we have to express each of the following complex numbers given in the exercise 1 to 10 in the form of a plus ib. First one is 5i into -3/5i। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 10 उसको हम लोग को a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या करना है, राइट करना है। ओके, आप यहाँ जैसे मल्टीप्लीकेशन कराते थे कराइए 5i इंटू -3/5i। यह 5 and 5 will be cancelled out, -3 i into i square। और स्टूडेंट्स व्हाट इज वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, -1। देन इट विल बी इक्वल टू -1 एंड देन -3 into -1 will be equal to 3। बट स्टूडेंट्स 3 is not in the form of a plus ib, so we have to convert 3 as in the form of a plus ib। then 3 can be written as 3 plus i into 0
और i इंटू जीरो की वैल्यू आप जानते हैं 0 हो जाएगा, और 3 प्लस i इंटू जीरो किसके इक्वल हो जाएगा 3. therefore we can say 3 can be written as 3 plus i into 0 which is in the form of a plus I. Okay, next question is start. I to the power 9 plus I to the power 19. स्टूडेंट्स यहाँ पे i का जो पावर है वो 4 से क्या है अधिक है, तो क्या मैं आपको तरीका बताया हूँ, ये जो पावर है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 रिमाइंडर 1, तो क्या मैं बताया हूँ इसको कैसे राइट करेंगे, i to the power 9 can be written as I to the power 4 to the power 2, okay, into I to the power 1 or simply I. I to the power 19 also can be written as 4 into 4 16 and here remainder is 3, therefore we can say I to the power 19 can be written as I to the power 4 to the power 4, okay, it will be equal to 4 4 is 16, I to the power 16 into I to the power remainder 3, and we have I to the power 4 is equal to 1, therefore we can write here 1 is square into I, and here 1 to the power 4, I cube can be written as I square into I, okay, and it will be I, it will be 1, I square means minus 1 into I minus 1 into I, it will be minus I, and it will be 0. But 0 is not in the form of a plus I. 0 can be written as 0 plus I into 0. Okay? तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इसको एक प्लस आई के फॉर्म में राइट कर लेंगे. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. I to the power minus 39 can be written as 1 upon I to the power 39. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 upon I to the power plus 39. And when we divide 39 by 4, 4 9 ga 36, 3, then we have 9 as quotient and 3 as remainder. So I to the power 39 can be written as I to the power 4 to the power 9 into I cube. Okay, 9 4 ja 36 plus 3 39. I to the power 4 means 1 to the power 9, and I cube can be written as I square into 1. Sorry, I square into I. 1 upon I, 1 to the power 9 means 1. I square means minus 1 into I. And it will be equal to minus 1 upon I. स्टूडेंट्स अभी भी ये प्लस आई के फॉर्म में नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में क्या दिख गया आई, तो क्या करेंगे जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, एंड देन इट विल बी इक्वल टू आई. बट स्टूडेंट्स I is not in the form of a plus I way, so we can say it will be equal to 0 plus I into 1. 0 plus I into 1 is in the form of a plus I way, and also it is equal to I. Okay?
क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 तक आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एलसीएम जो भी अगर डिनोमिनेटर पार्ट है तो एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है 1 माइनस आई टू दी पावर 4। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट का पावर अगर 2 हो तो हम लोग स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, 3 हो तो क्यूब वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि 9 और 10 में दे रखा है। यहाँ पावर क्या 4, तो इसको कैसे करें, 1 माइनस आई टू दी पावर 4 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आई। पावर का पावर कर देंगे, 2 2 या 4, स्क्वायर ऑफ a माइनस b कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। वन स्क्वायर मीन्स 1, स्क्वायर ऑफ I will be equal to -1 -2। Here 1 and -1 will be cancelled out। Square of -2I can be written as 2 2 या 4 I square minus k square plus, and it will be equal to 4 into I square means -1, 4 into -1 is equal to -4, and that will be answer. Okay students, in the question number 11 we have to find multiplicative inverse of the complex number 4 minus 3i. Then what will be multiplicative inverse of the complex number 4 minus 3i? Students, let us consider, let z is equal to 4 minus 3i. Then what will be multiplicative inverse of z? 1 upon z. Then 1 upon z will be equal to 1 upon 4 minus 3i. But students, here we have to rationalize like as 4 plus 3i upon 4 plus 3i से हम लोग क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन इट विल बी इक्वल टू 4 plus 3i, and here a minus b into a plus b means square of first minus square of second, and it will be equal to 4 plus 3i square of first, 4 square will be 16, and square of 3i it will be equal to 9i square, and we know that I square is equal to -1. Then it will be equal to 4 plus 3i upon 16 plus 9, that is 4 plus 3i upon 25, and this can be written as 4 upon 25 plus I into 3 upon 25 also, and it is in the form of a plus ib also. Okay, तो स्टूडेंट्स ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, and if you have any doubts related to any questions of this exercise you are free to ask. Okay, thank you very much.